وادی کشمیر کی آزادی کے لیے کوشش، ایک مجاہد کی سنسنی خیز داستان آپ کے لیے پیش خدمت ہے مشن کشمیر۔ سگریٹ کی بو ہلکی تھی، اسے ایک کمانڈو ہی فضا میں سونگھ سکتا تھا۔ بو مسلسل نہیں آ رہی تھی، اس کی ایک ہلکی سی لہر ہمارے قریب سے ہو کر گزر گئی تھی۔ بارش کی وجہ سے جھاڑیاں گیلی تھیں، ہم وہیں بیٹھ گئے۔ پھر میں نے جہانگیر بٹ کے کان میں کچھ کہا، وہ جلدی سے مجھ سے 10 قدم کے فاصلے پر بائیں جانب ہو کر جھاڑیوں میں بیٹھ گیا۔ میری ناک فضا میں سگریٹ کی بو تلاش کر رہی تھی۔ میں نے جہانگیر بٹ کمانڈو کے کان میں یہ کہا تھا کہ اگر گشتی پارٹی نے ڈوگروں کی 2-2 4-4 کی ٹولی ادھر آئے تو اسے گزر جانے دینا، ہمیں خامخواہ ان کے کمانڈو اٹیک کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ اگر ہم ان پر جھپٹے تو ان کے 2 فوجیوں کی تو چشم زدن میں گردن توڑ دیں گے، لیکن اگر تیسرے فوجی نے فائر کر دیا تو اوپر گن پوسٹ پر دشمن بیدار ہو جائے گا اور ہمارا مشن بھی ساتھ ہی ادھورا رہ جائے گا۔ ہم 10-15 منٹ تک جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھے رہے۔ دوبارہ نہ تمباکو کی بو آئی، نہ ہی دشمن کی کسی گشتی پارٹی کا کوئی فوجی ادھر سے گزرا۔ میں دبے پاؤں چل کر جہانگیر کے پاس گیا اور اسے بھی کہا کہ ہمیں مزید اوپر چلنا ہوگا۔ چڑھائی دشوار گزار تھی۔ ہم اپنی ٹریننگ کے مطابق آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے درمیان تھوڑا فاصلہ ڈالے اوپر چڑھتے جا رہے تھے۔ تھوڑی دور اوپر گئے تو چھوٹے چھوٹے درختوں نے ہمارا راستہ روک لیا۔ ہم کبھی کسی درخت کے بائیں طرف سے اور کبھی دائیں طرف سے ہو کر چڑھائی چڑھتے گئے اور کوشش کر کے اپنی سمت کو برقرار رکھا۔ اچانک ہمیں انسانی آوازیں سنائی دی۔ ہم وہیں اپنی اپنی جگہ پر دبک گئے۔ 2 آدمی باتیں کرتے آ رہے تھے۔ یہ گشتی پارٹی کے ڈوگرا سپاہی ہی ہو سکتے تھے۔ آوازیں قریب آئیں تو سگریٹ کی بو بھی آئی۔ گشتی پارٹی کو پیٹرول ڈیوٹی پر سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن یہ ڈوگرے سگریٹ پی رہے تھے۔ لیکن لگتا تھا کہ وہ سگریٹ مٹھی میں چھپا کر پی رہے ہیں، کیونکہ جس طرف سے آوازیں آ رہی تھیں اس طرف مجھے سگریٹ کی چمک ایک بار پھر نظر آئی۔ دونوں ڈوگرا سپاہی اپنے کسی کمانڈنگ آفیسر کے خلاف باتیں کر رہے تھے۔ میں نے جھاڑی کے پیچھے بیٹھے آنکھیں سکیڑ کر غور سے دیکھنے کی کوشش کی۔ درختوں کے درمیان مجھے 2 سائے دکھائی دیے جو ہماری طرف آ رہے تھے۔ میں نے سانس روک لی۔ کمانڈو جہانگیر بٹ نے بھی سانس روک لیا ہوگا۔ رات کے اندھیرے میں ڈوگرا سپاہی درختوں کے سامنے سے ہمارے درمیان سے گزر گئے۔ وہ جھاڑیوں کو پکڑ پکڑ کر پہاڑ کے پہلو میں سے ہو کر جا رہے تھے۔ نہ وہ چڑھائی چڑھ رہے تھے نہ ڈھلان۔ جب وہ دور چلے گئے اور ان کی آوازیں آنا بند ہو گئیں تو جہانگیر بٹ جھاڑیوں سے نکل کر میرے پاس آ کر بیٹھا اور سرگوشی میں بولا، معلوم ہوتا ہے کہ ہم ٹارگٹ کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ میں نے اسے کہا، اوپر 4 توپیں لگی ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق ان کا درمیانی فاصلہ 60-70 گز سے زیادہ نہیں۔ اگر کوئی ایک گن پوسٹ پوائنٹ آؤٹ ہو جائے تو وہ میرا ٹارگٹ ہوگا۔ تم اس کے متوازی دوسری گن پوسٹ پر اٹیک کرو گے۔ ہم نے اپنے پاس جو 8 گرینیڈ اور ایک سٹین گن رکھی ہوئی تھی، یہ انتہائی مجبوری کا اسلحہ تھا، یعنی اس وقت استعمال کرنا تھا جب دوسرا کوئی چارہ کار نہ رہا ہو، وگرنہ ہمارا مشن ایک خاموش کمانڈو مشن تھا۔ ہمیں 4 گن پوسٹوں پر اس طرح حملہ کرنا تھا کہ مورچے میں موجود ڈوگرا فوجیوں کو مشین گن فائر کرنے کی مہلت نہ مل سکے۔ ہم دشمن کو خاموشی سے چیتے کی طرح جھپٹ کر آنن فانن ہلاک کر دینا چاہتے تھے۔ اگر ایک گن پوسٹ کی مشین گن فائر ہوتی ہے تو دوسرے پوسٹ کے سپاہی ایک دم فائر کھول سکتے تھے۔ اس طرح ہماری سکیم ناکام ہو جانے کا خطرہ تھا۔ میں نے اندھیرے میں پہاڑی کے اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے جہانگیر بٹ سے کہا، میرے حساب کے مطابق ایک گن کو اسی جگہ ہونا چاہیے۔ اچانک چاروں طرف روشنی پھیل گئی۔ ہم نے سر نیچے کر لیا۔ دشمن کو شاید شک پڑ گیا کہ کشمیری کمانڈو پارٹی اٹیک کرنے آ رہی ہے، یا پھر اس نے احتیاط کے طور پر ایک ساتھ 3 روشنی کے راؤنڈ فائر کر دیے تھے۔ یہ روشنی راؤنڈ ایسے تھے کہ جن کے ساتھ پیراشوٹ بندھے ہوئے تھے۔ روشنی کے گولے آہستہ آہستہ نیچے آ رہے تھے۔ ساری وادی روشن ہو گئی تھی۔ میری نگاہیں اوپر لگی ہوئی تھیں۔ پہلا روشنی راؤنڈ پیراشوٹ کے ساتھ آہستہ آہستہ نیچے آ کر درختوں میں غائب ہو گیا۔ دوسرے روشنی راؤنڈ میں بھی میں اوپر نہ دیکھ سکا۔ تیسرا روشنی راؤنڈ فائر ہوا تو اچانک مجھے اوپر جھاڑیوں میں سے ایک گن کی نالی باہر نکلی ہوئی نظر آئی۔ میں نے جہانگیر بٹ کا کندھا ہلا کر اشارے سے اوپر گن کی نالی یا بیرل دکھایا۔ اس نے خوش ہو کر کہا، دوست یہ میڈیم گن کی نالی ہے، یا اللہ تیرا کرم ہے۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ روشنی راؤنڈ بجھ گئے تھے۔ وادی اور پہاڑیوں کی ڈھلانوں پر ایک بار پھر تاریکی چھا گئی تھی۔ دشمن نے روشنی راؤنڈ کی روشنی میں ہمیں تو نہیں دیکھا تھا، مگر ہم نے دشمن کی 4 توپوں میں سے ایک توپ کو دیکھ لیا تھا۔ ہم نے اس توپ کے رخ کی جانب چڑھائی پر چڑھنا شروع کر دیا۔ ہم اس طرح چڑھائی پر چڑھ رہے تھے جس طرح کوئی چیتا یا شیر اپنے شکار کو دیکھ کر دبے پاؤں اپنے جسم کو سکیڑ کر اس کی طرف آواز کیے بغیر بڑھتا ہے۔ ہم سانس بھی بڑی آہستہ سے لے رہے تھے۔
हम तोप के बंकर के करीब आ गए थे, मगर हमें पता न था। पता उस वक्त लगा जब अचानक गन पोस्ट के बंकर में से किसी सिपाही ने दूसरे को आवाज दी और उसे कुछ कहा जो हमारी समझ में न आ सका। ये आवाज सुनते ही हमने अंधेरे में अपने अपने कमांडो चाकू निकाल लिए। ग्रेनेड हमारी जैकेट की जेबों में थे। स्टेन गन को हमने पीठ पर इस तरह डाल रखा था कि चलते वक्त उसकी हल्की सी आवाज भी पैदा न हो। चाकू निकालते वक्त मैंने जहांगीर भट्ट को गन पोस्ट की दाएं जानिब ऊपर जाने का इशारा किया और हम दोनों अलग अलग होकर ऊपर रेंगने लगे। चढ़ाई पर रेंगना हिम्मत तलब काम था और हिम्मत हमारे पास मौजूद थी। फासला डालकर झाड़ियों की जड़ों को पकड़ पकड़ कर ऊपर की तरफ रेंग रहे थे। तारीकी में मुझे ऊपर कोई 10-15 गज के फासले पर मीडियम गन की नाली बंकर से बाहर निकलती हुई नजर आई। ये नाली जहांगीर भट्ट ने भी जरूर देख ली होगी, क्योंकि वो मेरे मुतवाजी मुझसे 7 गज के फासले पर ऊपर की तरफ रेंग रहा था। हम झाड़ियों को पकड़ पकड़ कर इस तरह रेंग रेंग कर चढ़ाई चढ़ रहे थे कि जरा सी भी आवाज न पैदा हो। इस काम की हमें सख्त ट्रेनिंग दी गई थी। मैं तोप की नाली के बिल्कुल करीब पहुंच गया। मैंने अंधेरे में गौर से देखा। ये एक पक्का बंकर नुमा मोर्चा था जिसके ऊपर गुंबद सा बना हुआ था। कमांडो जहांगीर भट्ट बंकर की दूसरी तरफ निकल गया। मैं बाएं जानिब बंकर की दीवार के साथ लगकर रेंगता हुआ आगे एक छोटे से चबूतरे पर आ गया। गन पोस्ट का रास्ता पीछे की जानिब था। जहां बंकर में मुझसे कोई 1 फुट ऊपर 2 सुराख थे, यकीनन जहां मशीन गन लगी हुई थी। सुराख चौकोर थे। तारीकी में मुझे मशीन गन की नाली नजर नहीं आई थी। मैं सांप की तरह चबूतरे के पत्थरों पर रेंग रेंग कर मोर्चे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। यहाँ मुझे एक और गोल सुराख नजर आया। इसमें से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। मैंने आहिस्ता से गर्दन ऊंची करके सुराख के साथ अपनी आंखें लगा दी। अंदर एमुनिशन के बक्सों पर 3 फौजी आमने सामने बैठे थे। यहाँ सर्दी ज्यादा थी और हवा भी सर्द चल रही थी। वो तमाम चीनी के मग हाथों में लिए चाय पी रहे थे। मैं बड़ी एहतियात के साथ गर्दन नीची करके पीछे हट गया। फिर स्कीम के मुताबिक बंकर के अकब में एक जानिब झाड़ियों में छुप कर बैठ गया। मैंने दूसरी तरफ जो झाड़ियां थी उनकी तरफ एक साए को रेंगते आगे बढ़ते देखा। ये मेरा साथी कमांडो जहांगीर भट्ट था। वो भी झाड़ियों में छुप गया। स्कीम के मुताबिक मैंने एक छोटा सा पत्थर उठाकर आहिस्ता से बंकर के गुंबद के ऊपर उछाल दिया। पत्थर ने सीमेंट के गुंबद पर गिरने से आवाज पैदा की। बंकर के अंदर कुछ तेज तेज आवाजें आईं। फिर एक सिपाही बंकर के दरवाजे से निकल कर आ गया। राइफल उसके हाथ में थी। उसके चलने के अंदाज से जाहिर होता था कि ये बात उसके जहन में नहीं है कि वहाँ कोई कश्मीरी कमांडो भी हो सकता है। वो गालिबन यही समझ रहा था कि दरख्त के ऊपर से कोई शाख या फल टूटकर बंकर की छत पर गिरा है। फिर भी वो मोहतात जरूर था। वो बंकर की दूसरी तरफ घूमकर खड़ा हो गया। फिर उसने आवाज दी, इधर कौन है? इस दौरान मैं झाड़ियों के पीछे से रेंगता हुआ उसके अकब में आ गया था। मैं सांप की तरह रेंग कर डोगरा सिपाही के अकब में आया था। मुझे यकीन है कि सांप के रेंगने की आवाज पैदा हो सकती थी, मगर मेरी मामूली सी आहट भी नहीं हुई थी। मेरी आंखें अपने शिकार पर जम गई थी। अब एक लम्हा आने वाला था। वो लम्हा 1 सेकंड का 10वां हिस्सा भी हो सकता था। 1 सेकंड का 100वां हिस्सा भी हो सकता था। इससे ज्यादा देर लगाना मुझे मेरे उस्ताद कमांडो कमाल शाह ने नहीं सिखाया था। आखिर वो लम्हा आ गया। जैसे ही डोगरा अपने बंकर की तरफ मुड़कर जाने लगा, मैं उस पर छलांग लगाकर उसकी गर्दन अपने दाएं बाजू के शिकंजे में लेकर बाएं हाथ वाला चाकू उसकी गर्दन के ऊपर ताकत से फिर चुका था। चाकू के फिरते ही मैंने उसे वहीं जमीन पर लेटाकर उसके हल्क पर अपना पांव रख कर दबाया ताकि उसके नरखरे में से सांस निकलने की आवाज पैदा न हो। इस ऑप्शन में 1 सेकंड से भी कम वक्त लगा। डोगरा फौजी की लाश बंकर के अकब में जमीन पर पड़ी थी। मैं उसकी लाश को पांव से पकड़कर घसीटता हुआ झाड़ियों में ले गया और नजरें एक बार फिर बंकर के दरवाजे पर लगा दी। कोई 10-15 सेकंड के बाद एक और डोगरा सिपाही बंकर के दरवाजे पर आ गया। राइफल उसके हाथ में नहीं थी, बल्कि स्लिंग के साथ उसके कंधे पर लटकी हुई थी। उस दूसरे डोगरे ने पहले डोगरे का नाम लेकर उसे गाली दी और फिर पूछा कि वो किधर मर गया है। जब उसके मरे हुए साथी ने उसका कोई जवाब न दिया तो वो मेरी तरफ आने की बजाय दूसरी तरफ चला, जिधर झाड़ियों में मेरा साथी कमांडो जहांगीर भट्ट घात लगाए बैठा था। मैंने उस दूसरे डोगरा सिपाही को जहांगीर भट्ट वाली झाड़ियों की तरफ जाते देखा। उसके बाद गहरी खामोशी छा गई। मैं जहांगीर भट्ट की तरबियत के कमाल पर उसे दाद दिए बगैर न रह सका। वो अपना काम कर चुका था। स्कीम के मुताबिक उसे दूसरे डोगरे को हलाक करने के बाद मेरे पास आ जाना था। अंधेरे में एक साया झाड़ियों में से निकल कर तेजी से मेरी तरफ बढ़ा। ये कमांडो जहांगीर था। वो मेरे पास आकर बैठ गया। कमांडो नाइफ खुला हुआ अभी तक उसके हाथ में था। उसने घास पर चाकू को रगड़कर डोगरा फौजी का खून साफ किया और सरगोशी में कहा, अंदर सिर्फ एक ही है। हाँ, मैंने बगैर आवाज के सरगोशी में कहा। हम दोनों की निगाहें बंकर के दरवाजे पर लगी थी। उसके पीछे हल्की रोशनी थी। मैंने जहांगीर भट्ट को इशारा किया। हम दोनों अलग अलग होकर गीली घास पर पेट के बल रेंगते हुए बंकर की तरफ बढ़े।
और फिर उसके दरवाजे की दोनों जानिब बंकर की पुख्ता दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए। खुले चाकू हम दोनों के हाथों में थे। बंकर के अंदर जो कोई भी डोगरा फौजी अकेला रह गया था, उसे अपने 2 साथियों के लिए बाहर निकलना ही था। चुनाचे ऐसा ही हुआ। जैसे ही उसने दरवाजे पर पड़ा हुआ नमदा उठाया, हमने उसे वहीं दबोच लिया। उसका काम तमाम करने की बजाय उसे हम अंदर बंकर में ले गए और उससे पूछा कि बाकी की 3 गन पोस्टें कहाँ हैं। वो हम दोनों के हाथों में चाकू और स्टेन गन और सर पर बंधे हुए स्याह रुमाल देखकर फौरन समझ गया कि हम कश्मीरी हुर्रियत पसंद मुजाहिद हैं। वो खौफजदा होकर बोला, मुझे नहीं मालूम, मुझे न मारना। लेकिन ये कैसे हो सकता था कि उसे दूसरी 3 गन पोजीशनों का पता न हो, और ये कैसे हो सकता था कि हम उसे अपना मतलब हासिल किए बगैर मार डालते। थोड़े से टॉर्चर के बाद उसने बाकी की 3 गन पोस्टों की निशानदही कर दी। ये गन पोस्टें मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक वहां से मुतवाजी लाइन में 50-50 गज के फासले पर थीं। उसके बाद हम उसे मोर्चे से निकाल कर बाहर ले आए। मैंने उसकी गर्दन को एक झटका दिया और उसका काम भी तमाम कर दिया। मोर्चे के अंदर मशीन गन भी लगी हुई थी। मीडियम गन के एमुनिशन के 6-7 बक्स भी पड़े थे। दूसरे असलहे के बक्स भी थे। उस डोगरा फौजी से हमने ये भी मालूम कर लिया था कि नीचे जो पेट्रोल गश्त कर रही है वो किस पोस्ट की है। उसने बताया था कि वो 3री गन पोस्ट की टीम है। वहां से हम 2री गन पोस्ट की तरफ चल पड़े। वो भी हमें मिल गई, जो वहां से 50-60 गज के फासले पर बाएं जानिब थी। रात के अंधेरे और खामोशी में हम अपने टारगेट पर पहुंच गए। ये तोप भी पुख्ता बंकर के मोर्चे में थी। बाहर सन्नाटा तारी था। दरवाजे पर नमदा लटक रहा था। तोप का बैरल बाहर निकला हुआ था। सर्दी काफी बढ़ गई थी। हमने बंकर के एक सुराख में से बड़ी एहतियात के साथ देख लिया कि अंदर दुश्मन के 4 फौजी मौजूद हैं। यहाँ हमें किसी को बाहर निकालने की जरूरत नहीं थी। हम अपनी मतलूबा मालूमात हासिल कर चुके थे। हम स्टेन गन लेकर एकदम से बंकर में दाखिल हुए और जाते ही फायर खोल दिया। 4 फौजी खून में लथपथ इधर उधर गिरते हुए तड़पने लगे। यहाँ से हम 3री गन पोजीशन पर गए। वहां भी हम इसी तरह चार्ज करके अंदर मौजूद डोगरा फौजियों को हलाक करना था। मगर हम बंकर के दरवाजे पर ही थे कि नीचे गश्ती टीम के फौजी अचानक एक तरफ से निकल आए। उन्होंने हमें ललकारा। हमने फायर खोल दिया। बंकर के अंदर से भी फौजी मशीन गन लेकर बाहर निकल आए। अब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। हमने ऊपर तले 3 ग्रेनेड फेंके। 3 धमाके हुए और पेट्रोल पार्टी के फौजियों और बंकर में से बाहर निकलकर जो सिपाही आए थे उनके परखचे उड़ गए। ग्रेनेड के धमाकों ने 4थी गन पोस्ट के सिपाहियों को चौकन्ना कर दिया। वहां से रोशनी के राउंड फायर हुए और साथ ही हम पर गोलियों की बौछारें आईं। हम जमीन पर बैठ गए। पहाड़ों में रोशनी राउंड के फायर होने से दिन निकल आया था। मैंने जहांगीर भट्ट को इशारा किया। वो दौड़कर गन पोस्ट के दरवाजे पर गया और एक तरफ लेट कर उसने अंदर पिन निकालकर 2 ग्रेनेड लुढ़का दिए। उसके साथ ही हम दोनों पीछे की जानिब झाड़ियों में भागने लगे। हम बमुश्किल थोड़ी ही दूर ही गए थे कि गन पोस्ट में 2 धमाके हुए। ये हमारे 2 ग्रेनेड के धमाके थे। मुझे तीसरे खौफनाक धमाके का इंतजार था, जो बंकर के अंदर तोपों के एमुनिशन के फटने से होना था। बंकर के दरवाजे का पर्दा उड़ गया था। अंदर से धुआं निकल रहा था। मैंने जहांगीर से कहा, दूसरी और पहली गन पोस्टों की तरफ डबल से। मुझे मालूम था कि अभी गन पोस्ट के अंदर से एमुनिशन फटने वाला है। हम दूसरी गन पोस्ट के बंकर की तरफ अंधेरे में दौड़ पड़े। चौथी गन पोस्ट की तरफ से बराबर फायरिंग हो रही थी। गोलियां हमारे ऊपर से गुजर रही थी। फिर एक धमाका हुआ। ये ऐसा धमाका था कि पहाड़ हिल गया। हम हवा के शदीद दबाव से 3-4 गज आगे गिर पड़े। मैंने पीछे मुड़कर देखा। गन पोस्ट के बंकर में से आग के शोले उठ रहे थे। छोटे छोटे धमाके जारी थे। हम उठकर दूसरी गन पोजीशन पर आए, जहां भी 2 ग्रेनेड बंकर के अंदर डाले और जितनी तेज दौड़ सकते थे पहली गन पोजीशन की तरफ दौड़ने लगे। हम अभी आधे रास्ते में थे कि एक भयानक धमाके ने सारी पहाड़ी इलाके को लर्जा दिया। हम जमीन पर लेट गए थे। दूसरी गन भी साफ हो गई थी। अब हम पहली गन पोजीशन में आए। उसका बंकर भी खाली पड़ा था। रोशनी राउंड बार बार आसमान और जमीन को रोशन कर रहे थे। हमें पहली गन पोजीशन साफ नजर आ रही थी। हमने उसके बंकर में ग्रेनेड फेंके और दौड़कर एक झाड़ी के पास जमीन पर औंधे होकर लेट गए। यहाँ कोई धमाका न हुआ। मैंने उठते हुए कमांडो जहांगीर भट्ट से कहा, यहाँ से निकलो, ग्रेनेड नहीं चले। हम उठे और पहाड़ी बकरों की तरह ढलान की झाड़ियों में छोटी छोटी छलांगे लगाते नीचे उतरने लगे। हम झाड़ियों में उलझ रहे थे, गिर रहे थे, मगर उतराई उतरते चले जा रहे थे। चौथी गन पोस्ट की तरफ रोशनी राउंड छोड़े जा रहे थे। मशीन गन की फायरिंग भी हो रही थी। इतने में ऊपर बड़ा जबरदस्त धमाका हुआ। एक बिजली सी चमकी और बंकर की ईंटें और पत्थर हमारे आगे जाकर गिरे। हमारे दोनों ग्रेनेड ने कुछ देर बाद ब्लास्ट होकर एमुनिशन के बक्स उड़ा दिए थे। साथ ही गन पोस्ट भी उड़ गई थी। अचानक चौथी तोप गरज उठी। उसने गोलाबारी शुरू कर दी, मगर उसके गोले हमारे ऊपर से गुजरकर नीचे वादी और पहाड़ियों पर गिरकर फट रहे थे। हम रास्ता बदल कर दूसरी तरफ हो गए। कमांडो जहांगीर भट्ट आगे आगे था।
पहाड़ की ढलान से उतरकर हम जरा दम लेने के लिए एक जगह बैठकर ऊपर देखने लगे। रोशनी राउंड फायर होना बंद हो गए थे। चौथी तोप बराबर थोड़े वक्फे के साथ शेलिंग कर रही थी। ऊपर चोटी की पहाड़ी ढलान पर 3 जगहों से जहां गन पोजीशनें थी वहां से अभी तक शोले उठ रहे थे। छोटे असलहे के फटने की आवाजें भी गूंज रही थी। जहांगीर भट्ट ने कहा, दोस्त एक गन पोजीशन तबाह होने से बच गई है। मैंने कहा, ये गन अब यहाँ नहीं रहेगी, इसे यहाँ से हटा दिया जाएगा, फिक्र न करो। थोड़ी देर बैठने के बाद हमने वादी में वापसी का सफर शुरू कर दिया। जब हम वादी से निकलकर खड्ड में उतरने लगे तो चौथी तोप की गोलाबारी रुक गई थी। जब हम खड्ड में से गुजरते हुए बाहर निकले तो पीछे मुड़कर एक निगाह पहाड़ की तरफ डाली। तबाहशुदा तोपों की तीनों पोजीशनों में मौत की खामोशी थी। उनमें से धुआं जरूर उठ रहा था जो रात की तारीकी में हमें दिखाई न दिया। हम अब बड़े इत्मीनान से रात की तारीकी में चिनार, चीड़ और अखरोट के दरख्तों के दरमियान से होकर अपने चट्टानों वाले खुफिया ठिकानों की तरफ चले जा रहे थे। जिस वक्त हम अपने अड्डे पर पहुंचे तो कश्मीरी कमांडो लीडर शेरवान ने और हमारे दूसरे कमांडो मुजाहिदों ने मुस्कुराते चेहरों से हमारा खैर मकदम किया। एक कश्मीरी मुजाहिद ने नारा लगाया। हम पहला धमाका सुनकर ही बाहर निकल आए थे। दुश्मन के रोशनी राउंड ने उनकी तबाही के मंजर को नुमायां करके दिखाया। मैंने कहा, हमें अफसोस है कि तीसरी गन पोस्ट को हम तबाह न कर सके। हमसे जरा सी गलती हो गई। बंकर के बाहर एक फौजी गार्ड ड्यूटी पर खड़ा था। हम अंधेरे में उसे न देख सके। उसने ब्रस्ट मारा तो हमें पीछे हटना पड़ा। कमांडो शेरवान ने भी मेरी बात दोहराते हुए कहा, ये अकेली गन वहां से हटा ली जाएगी। एक कश्मीरी मुजाहिद ने इस ख्याल का इजहार किया कि हो सकता है तबाहशुदा पोजीशनों पर फिर से गन्नें नस्ब कर दी जाएं। कमांडो शेरवान ने हाथ का मुक्का बनाते हुए कहा, खुदा की कसम, दुश्मन 10 बार वहां गन्ने लगा ले, हम 10 बार अपनी जान की बाजी लगाकर उन्हें तबाह करेंगे, तबाह करते रहेंगे। हम चट्टान के अंदर जो कुदरती गार था वहां बैठे थे। गार की फजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।